مجھے توفیق دے چن کر چلا جنت کی راہوں پر. قرآن کہتا ہے کہ میں جسے چاہوں لڑکا دوں، جسے چاہے لڑکی دوں، جسے چاہے دونوں دوں، جسے چاہے کچھ نہ دوں. تو جب یہ قرآن کہتا ہے تو اللہ ہی دینے والا ہے. ہم کیوں اتنا اللہ سے نراش ہوتے ہیں؟ ہم کو بس اللہ سے مانگتے رہنا ہے، ہم کو مانگتے رہنا ہے. جب تک ہمارے اندر طاقت ہے ہمیں اللہ سے مانگتے رہنا ہے. اب میں اس کا آپ کو پرسنل اگزامپل بتاتی ہوں. جب 2012 میں بگ باس سے نکلی تھی، اور اس سے پہلے بھی آف کورس میں کام کرتی تھی، پیسہ تھا، بٹ پتہ نہیں کیا ہوا جو 2013 سے میرا پہلا عمرہ کا سفر الحمدللہ شروع ہوا. اب سفر تو شروع ہو گیا، تو جب میں وہاں جاؤں نا، میں 2000 الحمدللہ 13 14 15 16 17 5 سال اللہ نے مجھے اپنے گھر بلایا، میرے گھر والوں کے ساتھ بلایا. اور جب بھی میں جاؤں مجھے آنیسٹلی آپ یقین کرو گے کہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، بیکاز کبھی کبھی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں نا، ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ نے ایسا جادو کر دیا. اب میں کسی کو بولوں گی تو پتہ نہیں وہ یقین بھی کرے گا کہ نہیں. تو میرے ساتھ میں آپ لوگوں سے وہی بات شیئر کروں گی جو سننے میں نا بہت عجیب لگتی ہے، پر یہ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ. اسی لیے جب میں کچھ بھی سنتی ہوں نا، کسی کے ساتھ کوئی بزرگ کے ساتھ یہ ہوا، تو میں نے کہا نہیں، وہ تو بزرگ تھے، جب میرے جیسے کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. کبھی کبھی ہم کچھ سٹوریز سنتے ہیں، ہم کہتے ہیں بہت عجیب سٹوری ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. ہماری عادت ہے نا یہ چیز کرنے کی. تو جو میں آف کورس کام کر رہی تھی، میں تھوڑا پاپولر ہو گئی تھی بگ باس سے آنے کے بعد، اور مووی ملی تھی سلمان کے ساتھ، تو آئی واز لائک واو یہ وہ. بٹ جب میں عمرہ کے لیے گئی پہلی بار، اور جب آف کورس جب آپ کعبہ دیکھتے ہو تو آپ کی آنکھوں سے ویسے ہی رونا آ جاتا ہے، وہ کوئی نہیں روک سکتا ہے، وہ خوشی کے آنسو ہے. اور آف کورس غم کے، وہاں جا کے انسان کو، میں کہتی ہوں جب سے اس کا ہوش سنبھالا ہوگا تب سے لے کے ابھی تک کے سارے گناہ یاد آ جاتے ہیں فار سم ریزن. تو جب میں نے پہلی بار کعبہ دیکھا، اور مجھ سے پہلے ہی کہا گیا تھا کہ جب آپ پہلی بار کعبہ دیکھو نا تو اللہ سے خوب دعا مانگو، خوب دعا مانگو، اور ہر وہ چیز مانگو جو آپ کے دماغ میں آتی ہے. اور میں نے سوچا جب میں جاؤں گی تو میں اللہ سے مانگوں گی کہ اب جب میں نے کعبہ دیکھا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جو مانگو کعبہ پہلی بار دیکھ کے دعا قبول ہوتی ہے، دعا تو ہمیشہ قبول ہوتی ہے. بہت ساری یہ روایتیں نا میں نے اپنی لائف میں توڑ دی. میں نے کہا یہ سب من گڑت کہانیاں بند کرے. لیکن آپ تو کعبہ صرف دیکھنے میں ہی اللہ کی کتنی کہتے 20% رحمتیں اترتی ہے، جو اوور آل یہ فضائل اعمال میں ہے، والیوم 2 میں. ابھی میری نئی تعلیم ہو رہی ہے تو تھوڑی بہت اوپر نیچے ہو جاتا ہے، پلیز معاف کر دینا. آئی ایم شیور آپ لوگ مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہو. مطلب وہ ہوتا ہے نا ٹیچر کے آگے بچہ بول رہا ہے، وہی بات ہے. تو بس آپ لوگ سب میرے ٹیچر ہو، اور میں کوشش کر رہی ہوں سیکھنے کی اور بولنے کی. جب میں بولتی ہوں تو مجھے یاد ہو جاتا ہے اور پکا. اور آپ لوگوں کو ہر چیز بتانے کا صرف یہی نظریہ ہے کہ وہ عمل میں اپنے اندر لے آؤں، کیونکہ ہم کو سب کو شیطان سے بچنا ہے مرتے دم تک. تو جب میں وہاں گئی نا تو مجھے ایسا لگتا تھا پہلے میں جاؤں گی نا، میں کہوں گی اور پکچریں دے دے اللہ میاں مجھے، اور کام دے دے، اور پاپولر کر دے. میرا دماغ میں یہی تھا. پر اب یقین نہیں مانو گے، جب میں گئی اور میں نے پہلی بار کعبہ دیکھا، میرے دل سے یہ دعا نکلی کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے. آنیسٹلی آئی ڈونٹ نو کتنے لوگ اس چیز کو ویلیو کرتے ہیں، پر میرے لیے یہ ورڈ ہدایت میرے لیے بہت ویلیو کرتا ہے، بہت. اس چیز نے میری دنیا اور شاید میری آخرت بدل دی ہے. اور کہیں نہ کہیں جو اسبابی طور سے دکھتا ہے، میں سوچتی ہوں شاید مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے. تو جب یہ ورڈ ہی آتا ہے نا تو میرا دل بہت بھر جاتا ہے کہ اللہ نے کیسا کر دیا. مطلب جب ہم پڑھتے ہیں نا قرآن شریف اور اس میں لکھ کے آتا ہے کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے. تو جب میں اینڈ آتی ہے نا ایک اور کہ آئی واز لاسٹ اینڈ ہی فاؤنڈ می اینڈ ہی گائیڈڈ می. میں گمراہ تھی اور انہوں نے مجھے صحیح راستہ دکھایا. تو
मैं कुरान शरीफ अभी भी जब भी पढ़ती हूँ और जब वो आयत आती है और मैं पढ़ती हूँ ना, मेरे आंख से आंसू ऐसे टप टप गिरने लग जाते हैं और मुझे रुकना पड़ता है कुछ वक्त, क्योंकि मैं खुद अभी तक ये डाइजेस्ट नहीं कर पाई हूँ कि अल्लाह ने ज़िंदगी मेरी कैसे बदल दी। बस अल्लाह इस्तिकामत दे और आखिरी दम तक हिदायत पे रखे और हिदायत पे मौत दे। तो मैंने अल्लाह से मांगा कि अल्लाह मुझे हिदायत दे दे और मुझे इस हराम से बचा ले और मुझे हलाल पे डाल दे। मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, अगर मैं ये काम छोड़ूं तो मैं करूं क्या? मुझे तो कुछ आता भी नहीं है, जॉब पे तो मैं जा नहीं सकती, तो मैं क्या करूं? उसके बाद मैंने अनफॉर्चुनेटली दुनिया ऐसी है ना, ये बहुत सैड चीज़ है जो मैंने शादी के बाद भी बहुत एक्सपीरियंस किया है लोगों के ज़रिए, बट मैं अदरवाइज़ आपको एक्सपीरियंस बताऊंगी कि लोग कहते हैं, जो लोग थोड़े बेचारे गुमराह हो जाते हैं और जो थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं मेरे जैसे, वो कहते हैं सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, हिदायत पे आ जाओ, सही रास्ते पे आ जाओ, सही रास्ते पे आ जाओ, और ये तो फहाशी है और गैर महरमों के साथ ऐसे काम करना बेशक गलत है। बट जब इंसान सुधरना चाहता है और अपनी ज़िंदगी सही करना चाहता है तो फिर वो उनके ऊपर अपने तानों की बारिश कर देते हैं कि इंसान उल्टा पैर भाग जाए, कि भले मैं सीधा हो जाऊं लेकिन मुझे लोगों को नहीं बताना है कि यार मैंने अल्लाह ने मुझे हिदायत की तौफीक दी, क्योंकि लोग मेरा मजाक बना रहे हैं और शायद इनकी वजह से ऐसा ना हो कि मैं वापस जहाँ से आई मैं वहाँ चली जाऊं, क्योंकि इंसान कमज़ोर होता है ना। इंसान ताने, आज हम घर में ताने सुनते हैं तो कैसा लगता है कि घर से भाग जाओ, होता है ना कभी कभी फीलिंग, भागना नहीं है बट वो फीलिंग आती है ना एक इंसान को। तो जब इतनी सी चीज़ पे जब आपकी अम्मी आपको कुछ बोल दे या कुछ ऐसा हो जाए तो इंसान सोचता है यार कितना, क्यों ऐसे यार, मुझे क्यों ताने दे रहे, इंसान कितना रोता है। तो आप सोचो जो इंसान चेंज होकर आता है, जब उसके लिए ये सब बोला जाता है तो वो चीज़ लेना, एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और बहुत, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना इमोशनल होता है कि आप उसको कुछ भी बोलो उसका इमोशन इनटू 10 टाइम्स बढ़ जाता है। तो सब तो कहते हैं छोड़ दो, छोड़ दो, सही रास्ते पे, सही रास्ते पे, पर जब इंसान अगर वो लड़की है खास तौर पे, अगर वो चीज़ें छोड़ देती, सही रास्ते पे आ जाती है, तो कोई दीनी घर उसे अपना बेटा नहीं देता। तो जब आप अपना बेटा नहीं दोगे तो अगर वो लड़की सही रास्ते पे आके सही चीज़ अपनाना चाहेगी तो वो उसमें आगे कैसे बढ़े? हम जब ये बात आती है ना कुर्बानियों की, और जब हम हदीसें पढ़ते हैं तो हम ना ये सारे एग्जाम्पल्स लोगों को तो बहुत अच्छे से दे देते हैं, बट जब वो अपने पे आती है ना तो हम वो करना पसंद नहीं करते। इसीलिए मैं मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और साथ ही साथ मेरे सास ससुर की, कि जो ये सारा सिचुएशन देखकर मुझे खुशी खुशी एक्सेप्ट किए। मेरे हस्बैंड ने एक इतना बड़ा स्टेप लिए, क्योंकि होता ना जो इंसान आलिम होता है तो उनके जो सराउंडिंग वाले होते हैं वो उनका दिमाग, कुछ लोग, नॉट ऑल, कुछ लोग ऐसा दिमाग में फितूर बिठा देते कि सामने वाला जो कुछ करना भी चाहता है तो उसे नहीं करने देते, क्योंकि उसको इतना डाउटफुल कर देते हैं कि आप तो इससे शादी कर रहे हो, ये टिकेगी कि नहीं। मतलब मेरी निकाह पे तो ऐसी ऐसी बातें उठी थी, मैं टिकूंगी कि नहीं, शादी मेरी 6 महीने भी नहीं टिकेगी और मैं वापस वही हो जाऊंगी जो मैं थी। और मैं अल्लाह को यही कहती थी कि अल्लाह मुझे सब्र दे और इन सबको दिखा दे कि ये लोग कितने गलत हैं, और शायद जब वक्त जाएगा और लोग देखेंगे तो शायद अपना नज़रिया बदले। मुझे जो चीज़ से मैं गुजर रही हूँ अभी, और जो तकलीफ़ चीज़ें सुनकर मुझे हो रही है, लेकिन मेरे कुछ चीज़ को लोगों तक ऐसे पहुँचा कि मेरे बाद आने वाली लड़कियों के लिए आसानी कर दे, ताकि मेरे जैसी जो और लड़कियां हैं वो अपनी ज़िंदगी का रुख बदले। और अनस को देखकर जो लड़के हैं वो ये करने के लिए आगे बढ़े कि हमें लाया गया, हमें बातों के लिए तो ना लाया गया है। मैं तो यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर सकती हूँ, बड़ी बड़ी बातें कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं वो अमल नहीं करती हूँ तो कोई पॉइंट ही नहीं है। और अल्लाह कहता है ना कि जब आप दाई बनो और जब आप लोगों को कुछ बोलो, अगर मैं आज आपको बोलूँगी ना कि आपको 2 रकात नफिल पढ़नी है तो मुझे 4 रकात तो एटलीस्ट पढ़ने वाली होना चाहिए, तब अल्लाह मेरी बातों में वो वज़न देंगे और वो जोर देंगे जो आप लोगों के दिल में जाके उतरेगी। वरना सिर्फ बातें यहाँ से सीधा वो डोर के बाहर हवा में
निकल जानी है। फिर अल्लाह कहेंगे जब ये खुद ही कुछ नहीं करती है तो आपके दिलों में लाना मुश्किल है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम किस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, हमें सोच के साथ हमें कहते हैं ना, हम प्रीच करने वाले नहीं बने सिर्फ, यू प्रैक्टिस वॉट यू प्रीच। आप जो बोलते हैं आप खुद प्रैक्टिस करें। तो मैं ऑफकोर्स बातें करने से पहले मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया, और जितनी चीज़ मैं अभी प्रैक्टिस करती हूँ मैं वो चीज़ बातें करती हूँ, और जो चीज़ मैंने नई नई अमल में लाई है मैं वो भी कोशिश करती हूँ कि मैं शेयर करूँ, ताकि साथ ही साथ जिन किसी को एक्चुअली पता, आप यकीन नहीं मानोगे, जैसे मुझे मेरे शौहर एक कोई बता देते कि आप ये पढ़ो, ये पढ़ने के बाद ये ज़्यादा ज़रूरी है और इससे फलाना फलाना फ़ायदा है। पता है मेरी सबसे पहली फीलिंग क्या होती है, मैं जल्दी से इंस्टाग्राम पे डाल दूँ ताकि सब पढ़ ले और सबको ये फ़ायदा हो जाए। आज अल्लाह ने ऐसा किया है कि ये फीलिंग सबसे पहली फीलिंग है जो मेरे दिल में आती है कि लोगों का फ़ायदा हो, लोगों का फ़ायदा हो। जैसे इन्होंने कहा, कुरान में लिखा है उखरिजत लिन्नास, कि हमें बनाया गया है एक दूसरे की बेहतरी के लिए। अल्लाह कहता है कि आप जाए और लोगों को बताए कि मुझे क्या पसंद है, और लोगों को जाकर ये भी बताए कि मुझे क्या नहीं पसंद है। और जो मेरी सुन्नतों को फॉलो करेगा और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फॉलो करेगा, वो बिल्कुल कामयाबी के रास्ते पे है। तो यही तो कुरान हमें कहता है एकदम खुले अल्फाज में। इसमें रीड बिटवीन द लाइन कुछ नहीं है कि अब आप इसके कितने मतलब निकालोगे, इसका कोई मतलब नहीं है। कट एकदम स्ट्रेट पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है, इसमें हमें कोई आगे पीछे की कोई दलाइल नहीं है, एकदम स्ट्रेट है। अगर ये कोई नहीं समझे तो वो बेवकूफ़ी होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कमेंट्स करने के साथ साथ शेयर ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।